and from which we can get information regarding our past. ठीक है, बुक्स ऐसी जैसे रिलीजियस टेक्स्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, दे आर आल्सो द फॉर्म ऑफ बुक्स. Okay, and from these books we can get information about our past, how the evolution of a human being, how they live a settled life, what work they used to do. Anuj Meena, mic band rakho. Okay, so these kind of things we can get, these information we can get from the books and burials. Okay, so let's begin with the chapter. Mary in the library. There is a girl whose name is Mary. She is telling a short story about her. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. Now Mary is in the school and she is going to library for the very first time. वो पहली बार लाइब्रेरी में एंटर हो रही है, लाइब्रेरी में जा रही है. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. अब जब आप फर्स्ट टाइम कहीं जाते हो तो आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो हर चीज को. ओके, तो इसी तरह मैरी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लाइब्रेरी है दैट वाज मच लार्जर देन हिज हर क्लासरूम. उसकी जो क्लासरूम उससे काफी ज्यादा बड़ी थी और स्पेशियस थी. एंड देयर वर सो मेनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स. ऑब्वियसली लाइब्रेरी में हमें क्या देखने को मिलेंगी? ओनली द बुक्स, द शेल्फ्स फिल्ड विद बुक्स. बहुत सारी बुक्स वहां पे हुई. इन वन कॉर्नर वाज अ कबर्ड filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said. Now मैरी ने क्या देखा कि एक कॉर्नर में एक कबर्ड है जहां पर बहुत ही मोटी मोटी और ओल्ड वॉल्यूम यानी बहुत पुरानी बुक्स थी. ठीक है, जैसे ही मैरी ने कबर्ड को देखा उसने उसे ओपन करने की कोशिश की तो उसकी टीचर बोलती है दैट कबर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजियंस. यानी उस कबर्ड के अंदर कौन सी बुक्स थी? द बुक्स रिलेटेड टू रिलीजन. रिलीजन से रिलेटेड बहुत ही पुरानी बुक्स थी. डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास? नाउ द टीचर इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू मैरी. क्या तुम्हें पता है हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें वेद्स भी होते हैं? अब व्हाट आर वेद्स? वी विल डिस्कस अबाउट वेदास इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. What are the Veds? Mary wondered. Mary को पता नहीं है कि Veds क्या होते हैं. Let us find out. Okay, so from here the chapter begins with the first topic, one of the oldest book in the world. Now जो ये Vedas है ये बहुत ही oldest है, बहुत ही पुराने टाइम पे लिखे गए हैं. These were the oldest book. Okay, you may have heard about Vedas. There are 4 of them. यानी हमारे कितने Vedas हैं इंडियन कल्चर में? 4 Veds. Okay, the first one is Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved and the Athar Ved. The oldest Veda is the Rig Ved. यानी सबसे पुराने वेद कौन सा है? Rig Ved. Okay, open your textbook, put today's date and write the name of the chapter and start writing. Start making notes. There are 4 Vedas. And which are these? First one is Rig Ved, which is the oldest one, सबसे पुराना है. It was written 3500 years ago. 3500 साल पहले ऋग्वेद को लिखा गया था. Okay. Second one is Samved. Third is Yajurved. You have to note it down in your notebooks. Notebooks में लिखना है सभी को. And the fourth one is Atharvaved. Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. You can write here ऋग्वेद के आगे ओल्डेस्ट करके भी आप लिख सकते हो. सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद. Completed? Ma'am. No, ma'am. Okay, very good. Yes. So Yes, ma'am. Ved is
Please side. Ma'am, side please. Now completed. No, ma'am. You can take help from your textbooks also. सिंपल 4 वर्ड्स है, इसमें भी आप इतना टाइम ले रहे हो. Completed, ma'am. Okay, very good. Yes. Complete The old ma'am. students, don't unmute your mics unnecessarily. थोड़ा सा I have साइड हो जाओ, लास्ट वाला देख लो. बार बार अपना माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है. Ma'am, please side. Yes. So among these 4 Vedas, the oldest one is the Rig Veda, composed about 3,500 years ago. The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called Sukta or well said. Now what happens? ये जो पलक सैनी, क्या प्रॉब्लम है बेटा? बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो आप? आप किसी स्टूडेंट ने अगर अनम्यूट किया तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. यस. जो ये जो वेद हैं, इनमें कुछ हाइम्स लिखी होती है. नाउ व्हाट आर हाइम्स? हाइम्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रार्थना. ठीक है, किसी की वर्शिप करते हैं, किसी को प्रे करते हैं, जैसे भगवान की आरती होती है, प्रार्थना करते हैं. तो ये प्रार्थनाएं कहाँ लिखी होती हैं? इन ऋग्वेद में. जो एशियंट टाइम में जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो प्रीस्ट रहे हैं, उन्होंने ये हाइम्स लिखी हैं. ओके, तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हाइम्स लिखी हुई हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सुक्ता और वेल सेड, यानी अच्छी कहावतें हम कह सकते हैं. ठीक है. सो दीज हाइम्स आर written in Rig Veda. The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. Now ये जो praise, जो प्रार्थनाएं लिखी हुई है, किसके रिलेटेड लिखी है? किसकी प्रार्थना हम कर रहे हैं? तो these are in the praise of God and goddesses, यानी देवी और देवताओं की जो प्रेज होती है, उनके लिए ये हाइम्स लिखी गई हैं. 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे 3 गॉड स्पेशली इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं. फर्स्ट वन इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर. इंद्रा, अ वॉरियर गॉड, यानी युद्ध से रिलेटेड जो देवी होती हैं, उसे क्या कहा गया है? इंद्रा. एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, यानी प्लांट को भी एक गॉडेस के रूप में यहाँ लोगों ने पूजा है, उसकी वर्शिप की है. और इससे रिलेटेड हाइम्स भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऋग्वेद में. ओके. These hymns were composed by sages. अब ये हाइम्स लिखते कौन थे? तो सेजेस, जो ऋषि मुनि होते थे, वो ये हाइम्स का कंपोजिशन या लिखना उनका काम था, वो लिखते थे. Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. अब जो priest होते थे, यानी जो ऋषि मुनि होते थे, जो पुजारी होते थे, आपको पता है एशियन टाइम में गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी. ठीक है. तो उस टाइम पे ये जो स्टूडेंट्स होते थे, जो सेजेस हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को एक एक वर्ड बहुत ही ध्यान से समझा के उनको रिसाइट करवाया करते थे, यानी उन्हें पढ़ाया करते थे. इसकी शिक्षा दी जाती थी उस टाइम पे. ओके. मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न्ड बाय मेन. जितने भी हाइम्स यहाँ पे ऋग्वेदा में जो इंक्लूड है, कंपोज्ड है, वो मोस्टली जो मेन होते थे उनके द्वारा लिखी जाती थी. मतलब मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड बाय मेन एंड फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन. और वुमेन्स सिर्फ कुछ जो है, थोड़ी बहुत हाइम्स जो है वुमेन्स भी लिखते थे. A few were composed by women. The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. Now, जो ऋग्वेद का जो कंपोजिशन है, जो हाइम्स इसमें लिखी गई है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? They were written in Vedic Sanskrit, which is totally different from the Sanskrit you today learn in your NCERT textbook. आपके जो NCERT textbook में जो संस्कृत आप पढ़ रहे हो, उससे टोटली क्या है? डिफरेंट संस्कृत थी उस टाइम. Okay, so Vedic Sanskrit is the language of hymns used in Rig Veda. Okay.
The books we use are written and printed. Coming to the next page. Next page पे लिखा है the books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. यानी आज जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल है वो उनको हम लिखते हैं और उनका प्रिंट होके पब्लिश भी हो जाती है, लेकिन एशियन टाइम में जो ऋग्वेद है उसको रिसाइट किया जाता था। जैसे हम पोयम रिसाइट करते हैं, रेसिटेशन करते हैं प्रॉपर टोन में, रिदम में, उस तरह से इन हाइम्स का क्या होता था, रेसिटेशन होता था, इनकी रीडिंग नहीं होती। ओके, और इसको जो स्टूडेंट्स हैं, प्रीस्ट इनको रिसाइट करते थे और स्टूडेंट्स इनको बहुत केयरफुली सुनते थे और लर्न करते थे। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. यानी फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुई, जब ऋग्वेदा लिखा गया था, उसके काफी सेंचुरीज के बाद में इसका फर्स्ट कंपोजिशन यानी इसकी पब्लिकेशन होना स्टार्ट हुई। ठीक है, ये बहुत साल पहले लिखा जा चुका था। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years ago, यानी पिछले 200 साल में ही इसकी क्या हुई, प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कहाँ पे है ये वेज, कहाँ से इन्हें ये मिले और इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। ओके, नेक्स्ट there is a green box here, you can see in your textbook on page number it is 36 given in my textbook. The mother of all the language, most of the language like Hindi derived from Sanskrit only. Yes Kriti, we are going to discuss about different families of language. Okay, तो इसमें ये सारा include हो जाएगा, संस्कृत कहाँ से आई, पर्शियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, all will be clear to you. Now we are going to discuss about different families of languages. यानी जो लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि रिसेंटली मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, तो इन्हीं लैंग्वेजेस को कुछ फैमिलीज में क्या किया, कैटेगराइज कर दिया गया। So here you can write different. Ma'am, we have to write this. Yes, you have to write it. Families of languages. First one, only 4 families are mentioned in your textbook. That's why I am writing only 4. जितना textbook में given है, वही 4 families के बारे में हम discuss करेंगे. The first one is Indo-European. Indo-European. ये सिर्फ एक फैमिली है। अब फैमिली में मेंबर्स भी होते हैं, तो उसी तरह से इस फैमिली में काफी सारी लैंग्वेजेस जो है एज अ मेंबर है। Second one is Tibeto-Burman family. Tibeto-Burman, sorry, Burman. Third one, Dravid family. Third one is Dravidian family. Remember students, these are not the names of language. These are only the families of language. Okay, कई सारी language इन families में included है. Fourth one, Austro-Asiatic family. Austro-Asiatic family. You know very well that each region, each area has a different language. हर region पे, हर area में एक different language हमें देखने को मिलती है। तो इन्हीं languages के basis पे ये 4 families आपकी textbook में given है। इनके नाम मैंने आपको लिखवाया, please note it down. Noted, ma'am.
डन मैम। नोटेड में। ओके, वेरी गुड। मैम बहुत सारे Done, बच्चे मैसेज ma'am. कर रहे हैं, इसलिए हमें बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बेटा ब्लैक बोर्ड तो बिल्कुल ठीक है। ओके, आई एम रीडिंग द सेंटेंस व्हाट एवर आई हैव रिटन इन द ब्लैक बोर्ड, लिसन केयरफुली। मैं रिपीट कर रही हूँ जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, केयरफुली सुनेंगे सभी बच्चे। डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट फैमिली इज इंडो यूरोपियन। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो फॉर स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की। First one is Indo-European. Second one, it is Tibeto-Burman family. Third one is Dravidian family. And the last one, fourth one is Austro-Asiatic family. इसी तरह से और भी फैमिलीज हैं लैंग्वेजेस की, बहुत ही ब्रॉड है लैंग्वेज, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, इनको डिफरेंट फैमिलीज में कैटेगराइज किया गया है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। ओके, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन, यानी संस्कृत जो है इस फैमिली का पार्ट है। कौन सी फैमिली? इंडो यूरोपियन फैमिली। ओके, सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. Asian languages such as Persian, many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. यानी कुछ इंडियन फैमिलीज और कुछ इंडियन लैंग्वेजेस एंड कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस को मिला के क्या बनाया गया है? इस फैमिली को बनाया गया है। ओके, तो इंडियन लैंग्वेजेस कौन से इंक्लूडेड है? Assami, Gujarati, Hindi, Kashmiri. Okay, and if we talk about European languages, they are English, French, German, Greek. At least 3 languages आपको हर family में याद रखनी है. Okay, and one more Asian language is also there, that is Persian. All these forms the Indo-European family. All these languages together form Indo-European family. मैम थर्ड वाली कौन सी फैमिली है? थर्ड वाली है द्राविडियन फैमिली। इसको हम अभी और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नोटेड। नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड अ फैमिली। Noted, ma'am. ओके नाउ व्हाई दे आर नोन एज फैमिली? इनको फैमिली का नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्ड्स हम यूज करते हैं, दे आर ओरिजिनली फ्रॉम अ कॉमन वर्ड। एक कॉमन वर्ड से उनका ओरिजिन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ वर्ड मात्र। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, मात्र इज अ संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड से ही क्या बना? नेक्स्ट, हिंदी का एक वर्ड बना है माँ, एंड माँ से ही नया वर्ड बना है इंग्लिश का, दैट इज मदर। यानी ये सब क्या है? इंटरलिंक्ड है, इनका ओरिजिन एक ही है। ठीक है, एक ही वर्ड को हमने कुछ डिफरेंट करके उसका मीनिंग सबका सेम है। मात्र मीन्स ऑल्सो मदर, माँ इन हिंदी इज ऑल्सो यूज फॉर मदर एंड इंग्लिश इज फॉर मदर। इंग्लिश वर्ड जो मदर है उनका भी मीनिंग क्या है? सेम है। पर्शियन लैंग्वेज इज इन इंडो यूरोपियन। कृति सोयल, पर्शियन लैंग्वेज जो है इंडो यूरोपियन का पार्ट है। Okay, yes. So why they are known as family? Because they originally had words in common. इनके जो words हैं वो common है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। Next, other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. यानी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहां पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, दे आर इंक्लूडेड इन टिबेटो-बर्मन फैमिली। उनकी एक फैमिली बना के उसका नाम दिया गया है टिबेटो-बर्मन फैमिली, which includes Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Yes, these are Tibeto-Burman family. Sorry. No, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belongs to the Dravidian family. यानी ये सारी कौन सी फैमिली में आएंगी?
द्रविडियन फैमिली, जो साउथ का पोर्शन है वो द्रविड कहलाता था एशियन टाइम में. दैट इज व्हाई these languages all together form the Dravidian family. तो कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड होंगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम belongs to Dravidian family, and the languages spoken in Jharkhand and the parts of central India belongs to Austroasiatic family. यानी सेंट्रल इंडिया और झारखंड के पार्ट्स में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, they all are included in Austroasiatic family. Okay, very good Kriti, if you have made notes, very good. Yes, so we have discussed about the different families of languages. You have to learn at least 3 languages. At least 3 languages हर family से आपको learn होनी चाहिए. Okay, this is a very important topic. Now coming to the next topic, how historians study the Rigveda. अब एशियंट हिस्ट्री जो वैदिक संस्कृत यूज की है एशियन टाइम में, वैदिक संस्कृत जो कि आज प्रेजेंटली हम शायद समझ भी नहीं सकते, इजीली डिकोड नहीं कर सकते, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे ऋग्वेद की स्टडी की, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. In the last chapters of history, we have studied that the best archaeological sources are, or the historical sources are the dead remains. जो bones हैं animals के या dead decaying parts जो plants के हैं, यही सब यूज करके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं. लेकिन इन्हीं के साथ साथ डेड रिमेन्स या फॉसिल्स के साथ साथ ही जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इन वेद के फॉर्म्स में है या फिर बुक्स के फॉर्म्स में है या मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में है, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट. ओके, लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा. सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. अब जो भी हाइम्स यानी प्रार्थनाएं जो वर्शिप जो लिखी हुई है ऋग्वेदा में, दे आर इन दी फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. डायलॉग्स मतलब कि 2 पर्सन कैसे कन्वर्सेशन करते हैं एक साथ, इसकी फॉर्म्स में ये हाइम्स जो है दे आर गिवन इन दी ऋग्वेदा. ठीक है, कन्वर्सेशन या फिर डायलॉग्स के फॉर्म में दे आर रिटन इन ऋग्वेदा. देयर इज एग्जांपल आल्सो कि कैसे एक डायलॉग के फॉर्म में एक जो हाइम है वो लिखी जा सकती है. इसका एक एग्जांपल भी गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में. वी विल रीड इट. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and 2 rivers, Byas and Satluj, that were worshipped as goddess. So यहाँ पे जो हमारा example given है, the hymn in the form of dialogue, they are between a sage, एक ऋषि है जिनका नाम क्या है, विश्वामित्र, and secondly, second person कौन है, there are 2 rivers, namely Byas and Satluj. इन दोनों के बीच में जो dialogues exchange हो रहे हैं या फिर हम ये कहें कि कॉन्वर्सेशन जो हो रही है, that is the form of dialogue form of hymn. Okay, ma'am, please tell which paragraph you are reading because in my book the chapters are changed. Students, today there is a network issue. I am unable to share my screen with you. That's why you are facing the problem. I have tried hundreds of times. So that इसीलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि मैम कहाँ से पढ़ रही हैं, कौन सा स्टैंजा पढ़ रही हैं. ओके, आई कैन जस्ट टेल यू दिस ऑन योर स्क्रीन. ये जो पोर्शन है, ये येलो पार्ट, यहाँ से अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. दिस इज द एग्जाम्पल और कॉन्वर्सेशन बिटवीन विश्वामित्र एंड दी 2 रिवर्स. ओके इशिता? ओके मैम. ओके, yes. So let's see the example or the conversation between Vishwamitra and the 2 rivers. Vishwamitra, O rivers, come down from the mountains like 2 swift horses, like 2 shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea. Through the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. Now Vishwamitra is praising the 2 rivers. ये जो विश्वामित्र हैं ये क्या कर रहे हैं, जो रिवर्स है उनकी प्रेस कर रहे हैं, उनकी बढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं ये कि तुम जो रिवर्स हैं आप माउंटेन से बिल्कुल जब नीचे निकलती हो तो ऐसा लगता है देयर आर 2 स्विफ्ट हॉर्सेस. स्विफ्ट हॉर्सेस मतलब फुर्तीले घोड़े दौड़ रहे हैं. आपको पता है रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है,
माउंटेन से। तो ऑब्वियसली यहाँ से स्लोप है, तो जब रिवर्स नीचे आएंगे तो उनका जो वाटर का फ्लो है इट विल ऑब्वियसली इन स्पीड में होगा। तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि दो फुर्तीले घोड़े जो हैं वो ऊपर से माउंटेन से नीचे की तरफ दौड़ के आ रहे हैं। एंड लाइक टू शाइनिंग काउज, शाइनिंग क्यों? बिकॉज रिवर इज मेड अप ऑफ वाटर, वाटर है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सनलाइट के रिफ्लेक्शन से ये क्या करेगा? शाइन करेगा। इट विल लुक लाइक व्हाइट कलर देगा ये, ठीक है। तो ऐसा जो विश्वामित्र है इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, दे आर कंपैरिजिंग दीज रिवर्स विद दी हॉर्सेस एंड विद दी काउ दैट लिक देयर काव्स। यानी आपने देखा होगा जब काव होती है उसका न्यू बेबी होता है, ठीक है, जो हम इसको हिंदी में बछड़ा कहते हैं। तो जैसे ही उसका बर्थ होता है तो गाय जो होती है वो उसे लिक करना शुरू कर देती है, उसे चाटना। मतलब कहते हैं कि ये जैसे आपकी मदर है, आपके फादर है, वो आपको किस तरह से आपका जो लव है एक्सप्रेस करते हैं। तो एनिमल जो है अपने यंग वंस के लिए इस तरह से अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जो विश्वामित्र है इन्होंने इनका कंपैरिजन किससे किया है? विद द टू स्विफ्ट हॉर्सेस and with the two shining cows that lick their calves. Okay, now the Vishwamitra is saying you move like chariots to the sea. यानी आप जब फ्लो करती हो माउंटेन से प्लेन्स की तरफ तो ऐसा लगता है कि रथ में सवार, यानी रथ जो है वो समुद्र की तरफ मूव कर रहा है। चैरियोट्स मीन रथ। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, यानी इंद्र जो है जिसे हमने पढ़ा था वॉरियर, गॉड ऑफ वॉरियर्स, उनकी पावर से ऐसा लगता है कि आप जो है जो रथ है, रथ एक सी की तरह यानी समुद्र की तरफ जो है बढ़ रहा है या मूव कर रहा है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, कि ऑब्वियसली यू नो रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर, लेकिन ये जो साथ में फ्लो करती है तो ऐसा लगता है दे आर यूनाइटेड, ये एक साथ क्या है? बंधी हुई है, एक साथ है। वॉरियर मीन्स योद्धा, जो युद्ध करते हैं ना, लड़ाई करते हैं, उनको कहते हैं वॉरियर्स। ओके, नाउ द रिवर्स आर सेइंग वी who are full of water move along the path the gods have made for us. Now rivers are responding to Vishwamitra conversation, उनके डायलॉग के कन्वर्सेशन में रिस्पॉन्ड कर रही हैं रिवर्स। वो कह रहे हैं कि yes we are filled with waters and we move on the path the gods have made for us. यानी भगवान ने जो रास्ते हमारे लिए यानी रिवर्स के लिए जो बनाए हैं हम उसी पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप। रिवर्स ऑब्वियसली एक बार अगर बहना शुरू कर देती है तो उन्हें स्टॉप करना, वो स्टॉप नहीं होती है। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, यानी अब वो ऋषि से पूछ रही है, सेज से पूछ रहे हैं वाई यू आर प्रेइंग टू अस, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ठीक है। विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स please listen to me, the singer who has come from a distance with the chariots and carts. Let your water not rise above our axles so that we can cross safely. यानी जो विश्वामित्र है वो रिवर से प्रे इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका जो चैरियोट है, उनका जो रथ है, उसको सी में से निकालना था, समुद्र में से पार करवाना था। ठीक है, तो चैरियोट के जो एक्सेल्स हैं यानी उनका जो हम कह सकते हैं व्हील्स जो हैं, ठीक है, उसका लेवल अगर उस वाटर का लेवल अगर उस एक्सेल से ऊपर होगा, ज्यादा होगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस द सी। ठीक है, तो इसीलिए जो विश्वामित्र है वो रिवर से प्रे कर रहे थे, उनसे वर्शिप कर रहे थे कि आप जो है अपने लेवल को, वाटर के लेवल को थोड़ा डिक्रीज कर लो सो दैट वी कैन क्रॉस दी पाथ, ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। रीड करके रखिएगा इस एग्जाम्पल को, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कुछ बच्चों ने पहले से ही